displacement in the last second of the body is known as s nth displacement. लिखो s nth displacement, displacement of the body in the last second. last second मतलब क्या है? देखो from 0 to 10 second, 0 to 10 second, the displacement is known as s 10 second displacement. s 10, what do you mean by s 10th second? 10th second मतलब 9 to 10 second journey, 9 to 10 second journey is known as s 10th. तो लास्ट सेकेंड जर्नी समझ में है. सिमिलरली इफ आई से s 5 सेकेंड, 5 सेकेंड मींस व्हाट? 0 to 5 सेकेंड जर्नी, 0 to 5 सेकेंड जर्नी. फिफ्थ सेकेंड का जर्नी मतलब क्या है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड? s फिफ्थ क्या होगा? अरे s फिफ्थ क्या होगा पीयूष बोलो? अरे s फिफ्थ मतलब क्या होगा? s फिफ्थ मतलब क्या है? 4 to 5 सेकेंड जर्नी, 4 to 5 सेकेंड जर्नी. If I'll say 20th second displacement, what is the displacement? 20th second means what? From where to where? अरे 20th second मतलब क्या है? बोलो 19 to 20. 19 to 20 second journey. अगर मैं बोलो 30 second journey तो कहाँ से कहाँ तक है? S 30th second displacement. 0 to 30 second है, 0 to 30. 30 second है, 0 to 30 and 30th second का journey है, 30th second का journey है. That is what 29 to 30. अरे समझ में? 30. तो s nth मतलब क्या है? n-1 to n होगा. अरे 1 सेकेंड का जर्नी है ना, n-1 to n सेकेंड का जर्नी होगा. समझ में है कि नहीं? अंडरस्टैंड दिस? अरे समझ में है तो लिखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द लास्ट सेकेंड इज नोन एज s nth डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द लास्ट सेकेंड इज नोन एज nth डिस्प्लेसमेंट. तो इसका दो मेथड में करेंगे, एक है जनरल मेथड, दूसरा है कैलकुलस मेथड. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज व्हाट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी. This is the distance traveled by the body A to B. Let it takes n second to travel from A to B. So n second displacement is known as SN. N second displacement SN. Clear? Now just before 1 second, मतलब ये just before 1 second. So this distance is what? This time is what? n-1 second. This time n-1 second. And the displacement traveled by the body is known as Sn-1 second displacement. Now the last second displacement is known as Snth. Last second मतलब ये 1 second का displacement को बोलोगे Snth displacement. ये है मेरा Sn displacement, ये है मेरा Snth displacement. A to B is known as Sn displacement and C to B is known as Snth displacement. क्यों? The displacement in the last 1 second of the body is known as SNth displacement. समझ में आ रहा है? Understand this? Draw the diagram. जिसको समझ में नहीं है बार बार पूछो, important questions है ये सब. Try to understand this first method. First method is more effective. जितना भी complicated problem है ना easily हो जाएगा. लिखो diagram draw करो पहले. Draw the diagram. Method 1 write down. First method, method 1 write down. लिखो I can write here what? Sn distance कितना होगा? अरे Sn distance कितना होगा? तो which formula you have to put? Ut plus half at square. अरे T मतलब Yes, यहीं से यहीं तक पूरा n है. T मतलब यहीं से यहीं तक पूरा n है. तो Sn is what? Ut plus half at square. सही हुआ? Ut plus half at square. Now Sn-1 distance मतलब कितना है? टाइम n-1 हो जाएगा. U तो सेम है. Ut T means n-1 plus half a t square. T square means what? n-1 whole square. समझ में आ रहा है? लिखो. Now s nth displacement is what? s nth क्या होगा? Sn minus Sn-1 that is s nth displacement. Sn से Sn-1 को subtract करोगे. लिखो. Now write down. Thus Sn minus Sn-1 करोगे तभी जाके s nth मिलेगा. समझ में आया? तो this is what un plus half an square minus what? U into n-1 plus half a into n-1 का square है. So what you're going to get? This is what s nth displacement. This is what un plus half an square minus what is that? Un minus u plus half a. This is a minus b whole square. A square minus 2ab plus b square. Clear?
एंड इसको अगर सॉल्व करोगे एस एन एथ के लिए कितना आएगा, यू एन लिखो, दैट इज व्हाट यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस ए बाई टू इंटू एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन, यू एन गेटिंग कैंसल्स आउट, लिखो राइट डाउन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, अरे अभी मॉर्निंग हुआ, हेलो अंतर्यामी, हेलो। यस सर। अरे जी बहुत जल्दी मॉर्निंग हो गया तुम्हारा, अभी तो मुझे नाइट ही दिखाई दे रहे है? मेरा कंप्यूटर हो हैंग हो गया, वो भी नाराज हो गया, अभी मॉर्निंग बोला, अभी तो नाइट है? अरे क्या है, ये भी हैंग हो गया, ओके आ गया। अरे इतना जल्दी उठ जाते हो, हेलो। नाउ इसको सॉल्व करो, तो दिस इज व्हाट हाफ ए एन स्क्वायर प्लस यू, इसको भी मुझे लिखना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, दिस इज व्हाट हाफ ए एन स्क्वायर, नाउ माइनस ए बाई टू इंटू माइनस टू एन प्लस वन, तो ये गेटिंग कैंसल्स आउट हियर, तो हाउ मच विल गेट, दिस इज व्हाट एस एन एथ इज व्हाट यू, ये देखो माइनस अंदर अगर चला जाएगा, इसको मैं प्लस लिखूंगा, माइनस अंदर चला गया, ये माइनस अगर चला जाएगा अंदर तो क्या होगा, माइनस टू एन प्लस टू एन हो जाएगा, प्लस वन माइनस वन हो जाएगा, दिस इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ एस एन एथ। एस एन एथ डिस्प्लेसमेंट इज यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। समझ में है सभी को? अरे फर्स्ट मेथड समझ में है, सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है एस एन से एस एन माइनस वन, you have to subtract that, लास्ट 1 सेकेंड, लास्ट 2 सेकेंड, लास्ट 3 सेकेंड, मतलब ये n के जगह, ये n के जगह क्या लिखोगे, लास्ट 2 सेकेंड मतलब n माइनस टू, लास्ट 3 सेकेंड मीन्स n माइनस थ्री, लास्ट 4 सेकेंड मीन्स n माइनस फोर, सब्ट्रैक्ट करोगे n से n माइनस फोर, हुआ कि नहीं, लास्ट मतलब इसी में सब्ट्रैक्ट करना है तुमको, समझ में है दिव्यांशु? अरे दिव्यांशु, हेलो। यस सर। यस, लास्ट सेकेंड मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, पूरा n से ये पूरा सब्ट्रैक्ट करोगे, वाह, लिख दिया, सभी लिख दिए? अरे कंप्लीटेड सर इससे पहले कुछ लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा, इससे पहले यही स्टार्ट किया, देखो एस एन एथ डिस्प्लेसमेंट का जो सुनाई नहीं दिया था तुमको, तुम लोगों को, हुआ एस एन ए यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर एस एन माइनस वन को लिखा, एस एन एथ डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड मेरा फॉर्मूला मिला एस एन एथ इज यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। इज इट क्लियर? समझ में है? क्लियर अबाउट दिस? अरे हो गया, लिख दिया ना? Okay, now second method by method of calculus. Write down method 2 by calculus. Method 2 by calculus. Method 2 by calculus method. जैसे हम s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में डिराइव किए थे, एग्जैक्टली वैसे ही होगा। देखो s v इज इक्वल डी एस बाई डी टी, समझ में है? एंड मेरा v क्या है, u प्लस ए टी, अरे पूरा वेक्टर फॉर्म आर देखो, मैं सब वेक्टर दे रहा हूँ, ये वेक्टर सब प्रॉब्लम वेक्टर ही होगा। नाउ ds इज इक्वल व्हाट, u प्लस ए टी इंटू डी टी, जैसे s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में डिराइव किया था। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स व्हाट विल गेट, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अभी इंटीग्रेट करना है मुझे, ds इंटीग्रेशन u प्लस ए टी dt इंटीग्रेशन, अभी लिमिट्स अप्लाई करूंगा, पहले लिखो, लिखो उसके बाद मैं कैसे लिमिट्स अप्लाई करना समझा दूंगा। हाउ टू अप्लाई द लिमिट्स, लिख दिए? नो सर। कंप्लीटेड? यस सर। ओके, नाउ लुक हियर, लिमिट, मेरा लोअर लिमिट कहां से कहां तक होगा, अच्छी तरह समझो, मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज व्हाट, एस एन एथ, मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, ये सी टू बी,
तो सी में लोअर लिमिट ऑफ टाइम कितना है, बोलो शुभम बोलो, व्हाट इज द n-1 एंड अपर लिमिट ऑफ टाइम क्या है, n है, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है शुभम बोलो, लोअर लिमिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट सी, अरे लोअर लिमिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट सी इज व्हाट, कितना है, Sn-1, अरे लोअर लिमिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अरे ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, Sn-1, अपर लिमिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, Sn है। तो अभी देखो सभी ध्यान से देखो, अगर समझ में नहीं आए तो फिर से पूछो। लोअर लिमिट ऑफ टाइम मेरा है n-1, तब लोअर लिमिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा Sn-1। जब अपर लिमिट ऑफ टाइम n होगा तभी अपर लिमिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा Sn। क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ रिगार्डिंग दिस लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, क्लियर हुआ ना। लोअर लिमिट ये ऑफ तो टाइम क्लियर इज, है क्या बोलो, सर, ऊपर जो फॉर्मूला लिखा तो ये तो एन के लिए लिखा ना। हाँ n के लिए तो लिखा ना, यहीं पे तो n लिखा है ना। अरे लोअर लिमिट ऑफ टाइम इज n-1, अपर लिमिट ऑफ टाइम इज n, व्हेन टाइम इज n-1 डिस्प्लेसमेंट इज Sn-1, व्हेन टाइम इज n डिस्प्लेसमेंट इज Sn। सही हुआ ना, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ये डिस्कशन है लास्ट 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है, लास्ट 1 सेकंड मतलब यहीं पे टाइम n-1 है तब डिस्प्लेसमेंट Sn-1 है, यहीं पे टाइम n है तब डिस्प्लेसमेंट Sn है। समझ में आया, अरे समझ में आई ये लिमिट, क्लियर हुआ, यस सर। ओके। अभी इसको इंटीग्रेट करो एंड गेट द आंसर। नाउ इंटीग्रेट दिस, इंटीग्रेट करो एंड गेट द आंसर। लिखो, लिख दिया ना सब, नाउ इंटीग्रेट दिस, तो दिस इज व्हाट ds Sn-1 Sn-1 to Sn, this is what u dt, this is what n-1 to n plus a dt at dt, this is what n-1 to n। यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, अरे यहाँ पे कांस्टेंट कौन है u dt में, यू u at dt में कांस्टेंट कौन है, ए a at dt में a is a constant, is a clear। now take it टाइम out, क्यों कंस्टेंट नहीं है क्या बोलो, सर? इधर 80 है ना सर, तो a 80 कांस्टेंट dt है, है ना सर? सर हाँ हाँ, तो ए कांस्टेंट है सर, टी क्यों कांस्टेंट है? समझ टी नहीं। कांस्टेंट कैसे हुआ, डी के साथ जो है वो वेरिएबल है, अरे dt, dt इज द वेरिएबल, अच्छा टी इज अच्छा, द यस सर, वेरिएबल, टी यस। वेरिएबल है। यहाँ पे ds वेरिएबल, अगर s होता तो वेरिएबल होता, यहाँ पे dt मतलब डी वेरिएबल के है, साथ सो जो लिखा कांस्टेंट होगा सर वो वो वेरिएबल वेरिएबल हो है, जाएगा। डी के साथ जो लिखा हुआ है वो वेरिएबल है, वाह, बाकी सब बाहर ले जाओगे। तो u यहीं पे बाहर आ गया, दिस इज व्हाट dt n-1 to n प्लस a कांस्टेंट t dt, दिस इज व्हाट n-1 to n। समझ में आया, नाउ इंटीग्रेट दिस, ds का इंटीग्रेशन क्या है, ds का इंटीग्रेशन s है, तो दिस इज व्हाट Sn-1 to Sn, एंड u dt का इंटीग्रेशन क्या है, अरे dt का इंटीग्रेशन क्या है, t है, n-1 to n प्लस a, t dt का कितना है, t dt का t square by 2, this is n-1 to n। now I can put upper limit minus lower limit, upper limit है Sn minus lower limit है Sn-1, this is what u, t के जगह n लिखूंगा, ये t के जगह n-1 लिखूंगा, प्लस दिस इज व्हाट a by 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, दिस इज व्हाट n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हुआ। लिखो लिखो लिखो, हाँ सर बोलो, हाँ बोलो, अरे बोलो, हेलो, यस सर। सर वो हाफ को क्या सर कॉमन ले लिए? हाँ हाफ बाहर आ गया, कांस्टेंट है 2 को बाहर ले लिया, हुआ, टी स्क्वायर, ओके, टी की कांस्टेंट जगह को n है, n स्क्वायर कांस्टेंट सब बाहर आता है ना, एंड टी की जगह लोअर लिमिट n-1 है, हुआ, अरे टी की जगह अपर लिमिट डाला, टी की जगह लोअर लिमिट डाला, अंडरस्टैंड दिस, समझ यस में है, लिख दिया, सभी लिख दिए। यस सर। नाउ Sn-1 क्या है, अरे व्हाट इज Sn-1 क्या है, s nth है, s nth यस डिस्प्लेसमेंट, दैट इज u into n-n plus 1 plus this is what a by 2 into n square minus n square minus 2n plus 1। now if you'll write here, what will get, you getting cancels out, u plus what is that, a by 2 into n square minus n square plus 2n minus 1, ये भी कैंसिल हो गया, एंड फाइनली क्या मिला,
एस एन एथ इज इक्वल u प्लस a by 2 इंटू 2n माइनस 1 मिला। वाह, दिस इज द फॉर्मूला। सेम आया कि नहीं? Yes, अरे sir. सेम आया, बस हो गया। ये इंपॉर्टेंट था। एक क्वेश्चन लिखो। हो गया? लिख दिया? Yes, sir. Now write on a question. लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, any kind of exam you are going to get. लिखो, if a body covered 10 meter in third second, 10 meter in third second and 20 meter in fifth second, 20 meter in fifth second, Sir, और एक बार थोड़ा। a body covered 10 meter in third second and 20 meter in fifth second, 20 meter in fifth second, then find out the displacement of the body, find out displacement of the body in 6 second and 6 second. Find out the displacement of the body in 6 second and 6 second. दोनों निकालो। 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ। कैसे करना है देखो, कैसे करना है देखो। मैं एक क्वेश्चन आंसर आया क्या दिव्यांशु? हेलो, अरे दिव्यांशु, सर लास्ट वाला फाइंड कर रहा हूँ। फाइंड कर रहे हो? ओके, मैं भी फाइंड कर रहा हूँ। देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। एस थर्ड सेकंड में 10 मीटर गया। थर्ड सेकंड का फॉर्मूला क्या है? एस एन एथ डालूंगा, एस थर्ड सेकंड, एन की जगह 3 डाला, तो u प्लस a बाई 2 इंटू 2n, n इज 3 माइनस 1। अरे एस एन एथ है थर्ड फिफ्थ, मतलब एस एन एथ का फॉर्मूला डालोगे। वाह, एस थर्ड दिया मेरा 10 मीटर, दैट इज व्हाट u प्लस a बाई 2, दैट इज व्हाट 6 माइनस 1 5। and if you just write 10 is equal, इसमें LCM लोगे 2u plus 5a whole by 2 is that clear? This implies that is what 2u plus 5a is equal 20। इक्वेशन 1 है, लिखो। वह इक्वेशन 1 है। सिमिलरली फिफ्थ सेकेंड में जा रहा है 20 मीटर, फिफ्थ सेकेंड में जा रहा है, हमको यू एंड ए पता नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो फिफ्थ सेकंड में जा रहा है 20 मीटर, तो फिफ्थ सेकंड में 20 मीटर जा रहा है, मतलब एस फिफ्थ इज इक्वल 20 मीटर। तो एस फिफ्थ का फॉर्मूला क्या है? अरे एस फिफ्थ का फॉर्मूला क्या है? u प्लस ए बाई 2 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1 इज इक्वल 20 मीटर। समझ में आया? तो इसको सॉल्व करोगे तो u प्लस 10 माइनस 1 9, 9a बाई 2 इज इक्वल 20। दिस इम्प्लाइज 2u प्लस 9a divided by 2 is equal 20, and finally I am going to get here 2u plus 9a is equal 40। 40 है इक्वेशन नंबर 2 है। समझ में है? ये दो को अगर सॉल्व करोगे इक्वेशन को, you will get u and a। let's solve for this। लिखो इधर, write down। सर आंसर कितना है आंसर? सर 6 सेकंड में 25 मीटर और टोटल 75 मीटर। 75 मीटर। ओके, लेट्स सी दिस। वाह, इसको अभी सॉल्व करोगे ये दो इक्वेशन को। कैसे सॉल्व करना है? 2u प्लस 5a इज इक्वल 20 एंड 2u प्लस 9a इज इक्वल 40। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इफ विल सॉल्व दिस, व्हाट विल गेट? माइनस माइनस माइनस, दिस इज माइनस 4a इज इक्वल माइनस 20, तो a इज इक्वल 5 मीटर पर सेकेंड पर। एक्सेलरेशन मिल गया। अभी u निकालना, इक्वेशन 1 और 2 में a का वैल्यू डाल दो, तो 2u प्लस 9a, 9a, a मीन्स व्हाट 5 इज इक्वल 40, तो 2u इज इक्वल 40 माइनस 45, तो u है कितना है? माइनस 5/2 मीटर पर सेकेंड। आया है इतना दिव्यांशु? Yes, sir. इतना है। इतना है। Yes. अभी देखो, अभी पूछा गया है कितना है? Yes, Yes, sir.
6 सेकंड का जर्नी पूछा गया है। अभी देखो 6 सेकंड का, 6 सेकंड मतलब एस 6 सेकंड, कौन सा फॉर्मूला डालोगे 6 सेकंड के लिए? u plus half at square। नो, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है। Yes, sir. टी कहाँ गया? Yes, sir. अरे टी कहाँ गया? अच्छा सुबह हाँ सुबह मॉर्निंग वॉक में चला गया टी है। अरे एस 6 सेकंड के लिए क्या है? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होगा। वाह, तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। u क्या है? u इज और माइनस 5/2, t इज और 6 सेकंड प्लस हाफ एटी स्क्वायर 5 into 6 स्क्वायर, सही हुआ। एंड दिस इज व्हाट 2 3 दिस इज माइनस 15 प्लस कितना आ रहा है? ये 36 मतलब 18, 18 5 कितना है? 90 है कि नहीं? तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? हेलो 75 75. 75 मीटर, यस एब्सोल्युटली करेक्ट 75। नाउ s 6 सेकंड के लिए कौन सा फॉर्मूला डालूंगा? s 6 के लिए, अरे 6 के लिए कौन सा फॉर्मूला डालूंगा? बोलो मनीष, 6 के बोलो। लिए सर u plus a हाँ, by 2 u प्लस a whole by 2 bracket यस इंटू 2n minus 1, 2n minus 1, समझ में आ रहा है? सर टोटल। यस, तो u दिया मेरा माइनस 5/2, एक्सलेशन दिया a, दिस इज व्हाट 12, दिस इज व्हाट 11, एंड दिस इज माइनस 5 प्लस 55/2, एंड मिल रहा है कितना? कितना मिल रहा है? 25 मीटर। तो S6 में 25 मीटर एंड दिस इज व्हाट 75 मीटर, एब्सोल्युटली करेक्ट, यस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इसी का, एंट्रेंस में भी गिरेगा इसी टाइप का। वह समझ में है? SNH डिस्प्लेसमेंट क्लियर अबाउट दिस? किसका डाउट है बोलो? सर हाँ बोलो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट? रिलेटिव वेलोसिटी। लिखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी समझ में है? रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? वी आर कंपेयरिंग द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विथ अदर। वी आर कंपेयरिंग द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विथ अदर्स। अभी तुम घर में क्या कर रहे हो? रेस्ट में या मूवमेंट कर रहे हो? अरे घर में क्या कर रहे हो? रेस्ट मूवमेंट कर रहे हो? अरे क्या दो भाग भाग के पढ़ रहे हो क्या? क्या चल के पढ़ रहे हो? अरे घर में क्या करके पढ़ रहे हो अभी? अरे यस, with respect to a wall your point is fixed, therefore we are feeling that we are at rest. But a person who is observing from moon, what will happen? वो तो पागल हो जाएगा। अरे ये लोग इतना स्पीडली कैसे मूवमेंट करते हैं, ये समझेगा। हम लोग तो मूवी कर रहे हैं। क्या बोलो? हेलो, अर्थ मूविंग, अर्थ मूव yes, हो रहा है मतलब हम earth लोग is moving मतलब we are moving, but with relative to each other we are at rest now. With relative to each other we are at rest, but with respect to moon we are moving. जैसे ट्रेन के अंदर दो सीट में तुम बैठे हो, दो सीट में दो बैठे हैं, दो दोस्त बैठे हैं, ट्रेन इज मूविंग। with respect to each other they are telling that they are at rest, but with respect to outside they are moving. क्लियर? जब ये बाहर देखते हैं तभी लगता है मूवमेंट कर रहे हैं, बट दोनों को देख रहे हैं तो लग रहा है दोनों रेस्ट में। तो दिस इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। अंडरस्टैंड दिस? Two types of relative velocities are there. One is for dependent body and another is for independent body. लिखो relative velocity for dependent bodies। लिखो relative velocity, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। relative velocity for dependent bodies, for dependent bodies, relative velocity for dependent bodies। इसके लिए देखो एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं, लिखो रिलेटिव वेलोसिटी फॉर डिपेंडेंट बॉडी। इसका एक फेमस एग्जांपल है। व्हाट इज दैट एग्जांपल? देखो ये अर्थ है, अर्थ मतलब ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर रेलवे ट्रैक है, उसी ट्रैक के ऊपर एक गुड्स ट्रेन मूवमेंट कर रहा है। ये गुड्स ट्रेन है। अरे गुड्स ट्रेन देखा है ना कभी? लंबा सा है, अरे गुड्स ट्रेन है। वह गुड्स ट्रेन इज व्हाट? मूविंग। On that goods train, a toy car is moving. A toy car. A toy car is moving. Toy car is moving. Toy car is moving. Understand this? And on that toy car, an insect is crawling or a bug is crawling. Insect or bug is crawling. तो ये ट्रेन जा रहा है with 40 किलोमीटर पर आवर, ये कार जा रहा है with 20 किलोमीटर पर आवर। वाह, ये बग जो इंसेक्ट जो है, बग BUG बग, बग मतलब एक छोटा सा बग है ना, और इंसेक्ट
that is crawling with a speed of 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी ट्रेन के ऊपर खड़ा है, गुड्स ट्रेन के ऊपर, दूसरा ग्राउंड में सब चीज देख रहा है। ड्रॉ द डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम ड्रॉ किया? Yes, sir. हो गया? Okay, now look here. What is the speed of the bug as observed by this person who is on the ground? Yes. What is the speed of the 40 bug as kilometer observed per by this person? कितना आएगा? 40 किलोमीटर पर 40. Are you sure? अरे Yes. ये पर्सन को बग का स्पीड कितना लगेगा? ये इंसेक्ट का स्पीड कितना लगेगा? ये पर्सन को जो ग्राउंड में खड़ा है कितना लगेगा? सर 62 किलोमीटर लगेगा, क्योंकि 40 किलोमीटर पर आवर में ट्रेन जा रहा है, 20 में कार जा रहा है, ये बग उसके ऊपर जा रहा है। मतलब अभी बग तो प्राउड सर फील करेगा। 62 ये कैसे लगेगा? 62 है, 40 प्लस 20 प्लस 2, अरे सब ऐड होगा ना। वो तो देख इसलिए रहा है ना, वो तो देख रहा है कि ट्रेन मूवमेंट कर रहा है 40 में 40 में, और फिर देख उसको रहा है लगेगा कि नहीं, उसके ऊपर उस- कार भी मूवमेंट कर रहा है 20 में, उसी के ऊपर बग भी चल रहा है 2 में, तो सबसे हाई स्पीड किसका होगा? अरे इसके लिए बग हाई का। स्पीड किसका है? बग का होगा। ट्रेन अभी बग प्राउड फील कर रहा है, ये ट्रेन को भी वो टक्कर दे सकता है। अरे समझ में है? अरे ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड में बग जा सकता है। अगर ये इंजन की तरफ जाएगा ये बग, तो ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड जाएगा, ठीक है नहीं? अरे हम लोग ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड में जा सकते हैं। कैसे? ट्रेन के अंदर अगर चल के जाओगे टुवर्ड्स इंजन, योर स्पीड इज मोर देन योर ट्रेन। अरे समझ में है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? इसलिए फिल्म में दिखाते हैं जो हीरो है ना, क्या करता है, ये कार के ऊपर वो छलांग लगा के आगे पहुंच जाता है। समझ में है? ये लॉजिक है, ये पॉसिबल है, तुम लोग भी जा सकते हो। अरे हीरो वैसे नहीं जाता है, तुम भी जा सकते हो, फिजिक्स पढ़ा ही वो हुआ। जैसे कार अगर आगे जा रहा है तो कार से कार जंप करो तो बहुत स्पीडली पहुंच जाओगे, ट्रेन से ट्रेन जंप करो तो ट्रेन से ही फास्ट भागोगे, हुआ। तो दैट इज ड्यू टू रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, हुआ। तो यहीं पे मैं कैसे लिखूंगा, देखो ये लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो व्हाट इज दैट, देखो सभी ध्यान से सुनो, मैं कैसे लिख रहा हूं यहीं पे। वेलोसिटी ऑफ द बग, जो बग किसके ऊपर है? कार के ऊपर है, दैट इज गिवन 2 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टैंड दिस? वेलोसिटी ऑफ द बग विथ रिस्पेक्ट टू कार इज 2 किलोमीटर पर आवर। कार किसके ऊपर है? अरे कार किसके ऊपर है? ट्रेन के ऊपर है। तो दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज व्हाट 20 किलोमीटर पर आवर। राइटिंग वे देखो, राइटिंग वे बहुत फंडामेंटल है फिजिक्स में। कार ट्रेन के ऊपर है तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज 20 किलोमीटर पर आवर। कार किसके ऊपर है? ट्रेन के ऊपर है। ट्रेन किसके ऊपर है? ग्राउंड और अर्थ के ऊपर है। तो आई हैव टू राइट वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज व्हाट 40 किलोमीटर पर आवर। हुआ? समझ में है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? सर ग्राउंड ग्राउंड और अर्थ जो भी लिखो, हुआ, तुम्हारा मर्जी। इसको ग्राउंड या अर्थ, ग्राउंड लिखेंगे क्या? ओके ग्राउंड लिखो। दिस इज व्हाट ग्राउंड और अर्थ, हुआ। समझ में है कैसे लिखना है? देखो ये प्योरली वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए लेफ्ट टू राइट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड राइट टू लेफ्ट इज टेकन एज नेगेटिव। प्योरली वेक्टर क्वांटिटी है, हुआ। अगर तुम्हारा वेलोसिटी जा रहा है राइट टू लेफ्ट, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड लेफ्ट टू राइट इज टेकन एज नेगेटिव। लिख दिया ये? कंप्लीटेड? Yes, sir. अभी देखो, अभी ध्यान से देखो, लिखो मत कुछ भी। नाउ वेलोसिटी ऑफ द बग विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना आएगा बोलो? अरे वेलोसिटी ऑफ द बग विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, मतलब ये आदमी के लिए बग का वेलोसिटी कितना लगेगा? 22। मतलब बग इज ऑन द कार, वेलोसिटी ऑफ द बग विथ रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ द कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, हुआ कि नहीं? अरे कहां तक मुझे लिखना है? ट्रेन तक लिखना है। अरे बग का स्पीड ट्रेन तक लिखना है, ट्रेन तक ही जाना है। वेलोसिटी ऑफ द बग विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, मतलब कितना आया? दिस इज वेलोसिटी ऑफ द बग विद रिस्पेक्ट टू कार इज 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ द कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज 20, मेकिंग योर 22 किलोमीटर पर आवर। समझ में है? अभी लिखो
अच्छी तरह ध्यान दे के लिखो। हो गया? हो गया तो ये इसको लो। यस सर, हो गया। हो गया? नो सर, थोड़ा सा। ओके बड़ा- ओके, डेफिनेटली लिखो। सर वो आड़ कैसे हो गया सर? ऐड होगा ना। अरे देखो, इसी के लिए इसका वेलोसिटी कितना लगेगा है? ये 2 में जा रहा है, ये कार 20 में जा रहा है, तो नेट वेलोसिटी बॉक का कितना हो? 20 + 2 22 हुआ ना। अरे तुम बस के लेकिन अंदर सर चल के, ऑब्जर्वर को तो 22 नहीं ना लगेगा। ऑब्जर्वर को ही 22 लगेगा, क्योंकि जो ट्रेन के ऊपर जो ऑब्जर्वर है उसी को 22 ही लगेगा। क्यों? अरे 2 इधर जा रहा है, ये जो ग्राउंड पे खड़ा है कार भी मूवमेंट कर रहा है 20 km/h। तो ये ऑब्जर्वर नहीं है, ये ऑब्जर्वर ट्रेन के ऊपर जो ऑब्जर्वर है, ये सही है ट्रेन के सर। ऊपर जो ऑब्जर्वर है उसको कितना लगेगा? 2 + 20। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आया? यस सर। ओके, नाउ वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना लगेगा? अरे ग्राउंड में जो ऑब्जर्वर है, कार का स्पीड कितना लगेगा उसको? 60। कितना? 60। कार का 20 जा रहा है, 60 ट्रेन का 40, तो 60 लगा। कैसे लिखोगे इसको? वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हुआ कि नहीं? तो कितना लगा ये? दिस इज व्हाट 20 + 40 मेक्स अस 60 km/h। इज दैट क्लियर? समझ में है? लिखो। नाउ राइट डाउन। हो गया? नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बग विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? इसको वेलोसिटी ऑफ द बग कितना लगेगा? अरे वेलोसिटी ऑफ द बग विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना लगेगा? अरे बग का वेलोसिटी इसको 62 62 40 + 20 + 2 62। कैसे लिखेंगे इसको? देखो, वेलोसिटी ऑफ द बग विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब ग्राउंड स्मॉल जी लिखेंगे। अच्छा, स्मॉल जी सब लिख लो। वाह, स्मॉल जी लिखो। तो वेलोसिटी ऑफ द बग, बग कहाँ है? कार के ऊपर है। कार कहाँ है? ट्रेन के ऊपर है। ट्रेन कहाँ है? ग्राउंड के ऊपर है। ग्राउंड के ऊपर है। वाह, तो बग का वेलोसिटी 2 है, कार का वेलोसिटी 20 है, ट्रेन का वेलोसिटी कितना है? 40 है, मेकिंग योर 62 km/h। अरे कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो क्या? क्या लिख रहा हूं मैं? एनीथिंग यू आर ऑब्जर्विंग हियर? हाउ टू राइट? देखो, लिख दिया? यस सभी लिख दिया? देखो, whenever I am writing relative velocity, last should come at first। देखो सभी में वही रिदम मेंटेन कर रहा है। BC लास्ट, फर्स्ट। अगर बीच वाला हिस्सा निकाल दो, इसको निकाल दो, तो BT आ रहा है। इसमें भी CG है। देखो, लास्ट इज कमिंग टू फर्स्ट। अगर बीच वाला हिस्सा निकाल दो तो CG आ रहा है। ठीक है नहीं? इधर भी लास्ट इज कमिंग एट फर्स्ट, लास्ट इज कमिंग एट फर्स्ट। बीच वाला अगर हिस्सा निकाल दो तो क्या आ रहा है? BG आ रहा है ना। So this is a way to write relative velocity. Last should come at first. That is a way to any complicated problem. While dealing with complicated problem, easily you have to write last should come at first. Last should come at first. That one you have to write. Understand this? That one you have to write. Last should come at first. समझ में है? Is it clear? अरे समझ में है? हेलो? यस। अगर अगर यहीं पे क्या होगा? अगर यहीं पे ये कार इधर जाएगा तो इसके लिए -20 लिखोगे। सपोज द कार इज मूविंग अलोंग दिस वन विद 20 km/h, 20 km/h, तो क्या होगा? अरे ये वेलोसिटी ऑफ द कार विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन क्या लिखोगे? -20। मतलब ये जो +20 यहीं पे मैं जो लिखा वो सब -20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है?